Good morning, everyone. Today we'll be moving on to poem 5, that is The Legend of the Northland. A Legend of the Northland is a ballad. A ballad is a poem narrating a story in short stanzas. So what basically is ballad? इसमें अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में क्या बताया जा रहा है कि दिस पोएम इज़ अ बैलाड एंड बैलाड इज़ बेसिकली व्हेन यू नरेट अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास. आप आगे जब पोम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हियर इन दिस पोम देयर इज़ अ स्टोरी which is been narrated to us, and that is a long story which is written in stanzas. Okay, so here each stanza has 4 lines, and in total there are 16 stanzas in this poem. So coming to the poem, stanza number 1. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So in the region around the North Pole is basically Northland. So here the duration of the day is very less because its position is such that the sun rays reach for a very less time. ठीक है. सो व्हेन दिस एरिया, जब इस एरिया में विंटर सीजन होता है तो यहाँ जो नाइट ड्यूरेशन होता है वो बहुत लॉन्ग होता है एंड द डे टाइम आवर्स आर वेरी लेस. ठीक है. तो इन 4 लाइन्स में दे हियर refers to this place, that is the Northland, and the poet says that the duration of the night time is so long कि that the people cannot even sleep them through. अगर वो बेड में जाते हैं, कुछ टाइम सोते हैं, उसके बाद जब वो उठते हैं तो उनको फिर लगता है कि अभी वो नाइट टाइम ही चल रहा है. तो ये क्या एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ, that the fact that the duration of the night is very long in this place. And what is that place? Northland. Moving forward, stanza 2. And they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, as you can see in the picture. And the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. So now here the Northland region experiences very severe cold conditions, and it is a very snowy area. As you can see in the picture here, the boy, the reindeer is an animal which is found in this polar region where there is a snowy area basically. So people here tie the reindeers to the sledges, and then the reindeers pull the sledges, as you can see in the picture. And he also says that the children look like the young ones of a bear. क्यों ये ऐसे क्यों बोला गया उनको bear की तरह? क्योंकि वो वहाँ funny looking clothes पहनते हैं which is made of fur. और ये क्यों पहनते हैं? To protect themselves from winter. तो ये इन दोनों स्टांजा में ये एक जगह की बात हो रही है, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड नॉर्थलैंड. स्टांजा 3. They tell them a curious story. I don't believe this is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So in line 1 here again, they refers to the parents or elders, and them. Again in the first line, third word refers to the children or the younger generation. So the elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. Basically ऐसे ही होता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते हैं. तो here the poet says that he doesn't think that the story is true. क्या लिखा है? I don't believe this is true. That means he is saying कि I don't think this story is true. But if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. That means the story gives us an important lesson. वो हमें बता रहे हैं. If I tell the tale to you, जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि अगर मैं ये स्टोरी आपको सुनाऊं तो क्या पता आपको लगे कि दिस स्टोरी इज ट्रू. And what is that story? To hear that story, we have to move into the next slide, that is stanza number 4. Once
when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did. So now here किसके बारे में बात हो रही है? ये स्टोरी किसके बारे में? सेंट पीटर के बारे में. एंड ये बता रहे हैं कि व्हेन सेंट पीटर यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड एंड वेंट अराउंड. प्रीचिंग का मतलब होता है जब हम रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं लोगों को. यू वुड हैव सीन काफ़ी सारे जो संत होते हैं सेंट, वो क्या करते हैं, वो रिलीजियस लेक्चर्स ही देते हैं सबको. तो वो उस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब सेंट पीटर सारे दुनिया में वर्ल्ड में घूम रहे थे और लोगों को ये रिलीजियस लेक्चर दे रहे थे. तो क्या हुआ? एक इंसिडेंट हुआ था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल गेट टू नो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट. ही केम टू अ डोर ऑफ अ कॉटेज in traveling round the earth when a little woman was making cakes and baking them on the earth. This is a fireplace where you do cooking. ठीक है. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब सेंट पीटर वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, वो क्या कर रहे थे? वो प्रीचिंग कर रहे थे. दैट मीन्स ही वॉज गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल. तो वो एक कॉटेज के डोर में आए. वहाँ उन्होंने क्या देखा? देयर वॉज अ वुमेन, अ लिटिल वुमेन मीन्स मतलब अ स्मॉल वुमेन हु वॉज मेकिंग केक्स. वो केक बना रही थी और वो क्या कर रही थी? वो एक फायर प्लेस के वहाँ केक को बेक कर रही थी. Stanza 6. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. As Saint Peter had not eaten anything the entire day, and what was he doing? वो सबको religious lectures सुना रहे थे. And you know when we talk to people a lot, तो क्या होती है? हमारी energy वहाँ waste हो जाती है and we feel hungry. So same way, Saint Peter had not eaten anything the entire day and he was very hungry and he was feeling weak. So उन्होंने क्या किया? He went to this woman. Who is this woman? The woman who was baking cakes, and he asked for one cake. उसके पास काफ़ी सारे केक थे. उन सारे केक में से सेंट पीटर ने क्या बोला कि आई नीड वन केक बिकॉज ही वॉज हंग्री. सो नाउ लेट्स नो व्हाट वाज द लेडीज रिस्पॉन्स. As you can see, this is a piece of cake. So she made a very little cake. That means जो लेडी थी, सेंट पीटर ने जब एक केक मांगा तो she agreed to it. She made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. That means यहाँ क्या पता चल रहा है कि the woman was very selfish. She did not give the cake from her store. उसने अपने स्टोर से वो केक नहीं दिया. इंस्टेड उसने क्या किया? उसने सेंट पीटर के लिए एक स्मॉल केक बेक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग्स. बट जब उसने केक बेकिंग के लिए रखा था तो उसने जब उस केक को देखा तो उससे लगा कि दिस इज़ टू लार्ज टू गिव अवे. दैट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर मैं ये किसी को दूंगी. दैट मीन्स इन दिस स्टैंजा वी कैन सी द सेल्फिश नेचर ऑफ दैट woman. Stanza 8. Therefore she needed another. Needed another मतलब उसने क्या किया? एक और needed का मतलब होता है to make dough. dough मतलब जब आप आटा गूंथते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसने जब केक के लिए वापस गूंथना स्टार्ट करी थी. and still a smaller one. But it looked when she turned it over as large as the first had done. इसका मतलब होता है कि and still a smaller one. उसने सोचा कि मैं इसे छोटा बनाऊंगी. बट अगेन जब उसने देखा तो उसको क्या लगा कि जो उसने पहला केक बेक किया था ये उससे भी बड़ा है. तो इधर अगेन earlier we read कि she was very selfish. Here we can see she is very miser woman who thought that the cake was too big to give away. तो उसने नया केक बेक करना स्टार्ट किया. अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर. Stanza 9. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. That means उसने क्या किया? फिर जो डो का
जो आटा उसने गूंदा था उससे थोड़ा हिस्सा लिया और उसको रोल कर रही थी। मतलब उसको जब आप बेलन से रोल करते हैं, बेलते हैं, तो उसने क्या किया, उसने एकदम फ्लैट किया था। ये दिस वॉज द थर्ड टाइम शी टुक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डो एंड शी स्टार्टेड टू रोल इट and baked it thin as a wafer, as everybody would have eaten wafer। आपने देखा होगा कि वेफर कैसे होते हैं, वो बहुत फ्लैट होते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, उसने she was so greedy that she couldn't even give that thin piece of bread to the saint, but she couldn't part with that, मतलब वो नहीं दे पाई सेंट पीटर को उतना सा भी पार्ट। stanza 10 For she said, my cakes that seem too small, when I eat of them myself। अब ये क्या कह रही है कि उसने क्या कहा कि my cake seems too small। जब वो कह रही है कि जब मैं अपना केक खाती हूँ तो मुझे हर एक मेरा केक बहुत छोटा दिखता है। Are yet too large to give away। अब वो क्या कह रही है कि पर अगर मैं वो देने की बारी आती है किसी को तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लार्ज लगता है, बड़ा लगता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो उसने क्या किया, वो जो केक था उसने जो थर्ड टाइम बेक किया था उसको अगेन शी केप्ट इट इन द सेल्फ। तो अब शी फेल दैट दे वर वेरी स्मॉल, बट अगर वो किसी को देती है तो वो उस टाइम इट बिकम्स टू बिग टू गिव अवे। तो उसने क्या किया, शी पुट अवे द केक्स ऑन द किचन इन द शेल्फ, और उसने शी डिड नॉट गिव एनी केक टू सेंट पीटर। नाउ Then good Saint Peter grew angry. So Saint Peter became angry now, for he was hungry and faint। अगर आप इमेजिन करें कि when you are hungry, जब आपको भूख लगती है तो what happens, आपको सिर्फ खाना उस टाइम चाहिए रहता है। If somebody, अगर आप इस जगह में इमेजिन करें आप सेंट पीटर की जगह होते तो ऑब्वियसली आपको भी गुस्सा आता, बिकॉज when a person is hungry he just needs food, and when he doesn't get food he gets very angry। So similar thing was happening with Saint Peter, because he was very hungry, he was feeling very weak, and then the selfish woman was not ready to give him even a small cake। So this behavior of the greedy woman angered the saint। जैसे एक सेंट को ने उसका ये ग्रीडी बिहेवियर देखा, सेल्फिश नेचर देखा, तो सेंट को बहुत गुस्सा आया। दैट in the fourth line see was enough to provoke a saint। provoke का मतलब होता है जब आप किसी को गुस्सा दिलाने में कामयाब रहते हो, cause to get angry। तो that lady was, she provoked the Saint Peter। stanza 12 And he said, you are far too selfish to dwell in a human form। अब सेंट पीटर ने क्या किया, सेंट पीटर ने कर्स किया वुमेन को, और उन्होंने कहा कि शी वॉज वेरी सेल्फिश, एंड उन्होंने ये भी कहा कि शी डिड नॉट डिजर्व टू बी टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म का मतलब होता है कि शी डजंट डिजर्व टू बी टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने ये भी कहा कि ही एडेड दैट गॉड हैड गिवन हर फूड, शेल्टर और फायर टू कीप वार्म, बट शी हैड बिकम वेरी सेल्फिश। इसको इतने सारे रिसोर्सेज मिल गए, इसलिए शी केम वेरी सेल्फिश एंड शी डिड नॉट वांट टू शेयर देम विथ एनीबडी। तो वो नहीं चाहती थी कि वो अपना कुछ भी चीज़ किसी के भी साथ शेयर करें। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू। अब ये कौन कह रहा है, ये सेंट पीटर कह रहे हैं। सेंट पीटर को जब गुस्सा आया था तो उन्होंने उस लेडी को कर्स किया, और उन्होंने क्या कहा, शी वुड बिकम अ बर्ड बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व इन द ह्यूमन फॉर्म। लास्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था जब उन्होंने कहा कि डोंट ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब तुम डिजर्व नहीं करती हो ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए। तो नाउ ही सेड दैट शी शैल बिकम अ बर्ड, एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेज बाय बोरिंग। आपने अगर देखा होगा कि वो अपने जो बर्ड्स होते हैं वो अपने हाउस कैसे बनाते हैं, बाय बोरिंग इनटू द वुड एंड कलेक्ट लिटिल फूड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे। वो पूरे दिन मेहनत करते हैं अपना थोड़ा सा खाना खाने के लिए। सिमिलरली शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द ड्राई वुड। तो ये सेंट पीटर ने उसे कर्ज दिया था कि सेम जैसे बर्ड्स अपने पूरा दिन मेहनत करती है अपना खाना खाने के लिए, तो वो चाहते थे कि ये भी जो ये लेडी है वो पूरा दिन मेहनत करे ऑल डे एंड गेट लिटिल फूड एंड मेक अ
स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन। जैसे बर्ड्स वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर उन्हें जो थोड़ा सा खाना मिलता है तो वो अपने प्लेस में जाके वो खाना खाते हैं। तो वो चाहते थे कि जो ये लेडी हो वो एक बर्ड फॉर्म में आ जाए। Stanza 14. Then up she went through the chimney, never speaking a word. As you can see, this is the chimney. This lady, the lady, as you can see, जैसे वो चिमनी से निकली तो शी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ बर्ड। दैट मीन्स जो सेंट पीटर ने कर्स दिया था वो कर्स लग गया था उस लेडी पे। नेवर स्पीकिंग अ बर्ड, दैट मीन्स ऑब्वियसली अब वो बर्ड हो गई है तो शी कैनॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, मतलब चिमनी से बाहर विच बर्ड केम आउट, दैट वॉज अ वुड पेकर। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड। अब क्या हुआ, जैसे सेंट पीटर ने कर्ज किया तो शी वॉज चेंज फ्रॉम द लेडी टू अ वुड पेकर and she flew up the roof through the chimney and flew out, and then she was converted from woman into a bird. Coming to the 15th stanza. She had a scarlet cap on her head. Scarlet एक color होता है, that is a red color basically, okay, and that was left the same. That means उसने when she was the lady तो उसने एक scarlet cap पहनी थी अपने सर में, and that was left the same, मतलब when she was converted into a bird ये सिर्फ एक चीज़ थी उसके पास जो वही सेम थी। But all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. So now when the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red colored cap on her head, and this cap was there on the bird's head also. That means सारी चीज़ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसने जो कपड़े पहने थे वो सारे क्या हो गए थे, वो बर्न हो गए थे, और वो कोल में जैसे ब्लैक एंड कोल काला जो उसके कपड़े थे वो राख हो गए थे, और सिर्फ उसके पास एक चीज रिमेनिंग थी, दैट वाज स्कारलेट कैप, रेड कलर की जो कैप थी। लास्ट स्टैंजा। and every country schoolboy has seen her in the wood. That means people who live in the countryside, even the small children who go to the school, every country schoolboy मतलब जो the small children who go to the school has seen this kind of birds in the wood, and they see that she stays all the day there and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. अब याद करें जब मैंने बताया था कि सेंट पीटर ने क्या कर्ज दिया था कि होल डे यू आर गोइंग टू सर्च फॉर योर फूड। आप वुड को बार बार उसमें होल डिग करेंगे बिकॉज ये एक मेहनत का काम होता है, एंड शी इज़ गोइंग टू कलेक्ट हर फूड, एंड वेन एवर एनी चाइल्ड सीज दिस काइंड ऑफ वर्ड देन उनको याद आता है कि देयर एल्डर्स टोल्ड देम a story, and this was that story. They say that the bird used to be a woman earlier. That means उनके जो मम्मी पापा या दादा दादी या उनसे जो भी एल्डर्स थे वो ये स्टोरी बताते थे कि दिस इज़ अ बर्ड दैट यूज्ड टू बी अ वुमेन अर्लियर बिकॉज शी वॉज वेरी ग्रीडी। इसकी वजह से उसको किसने कर्ज किया, सेंट पीटर ने कर्ज किया, एंड सेंट पीटर ने क्या किया, ही टर्न्ड दैट लेडी इनटू अ बर्ड। अब दे गेट अ टीचिंग दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी। तो इससे वो सारे स्कूल बॉय एवरीबडी इन दैट एरिया गेट अ लेसन कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसको देखा था ओल्ड लेडी, जब सेंट पीटर थक के आए थे तो उसने क्या करना चाहिए था, शी वुड हैव गिवन द फूड व्हाट ही वाज आस्किंग फॉर। जब वो खाने के लिए मांग रहे थे तो उसको खाने के लिए दे देना चाहिए था, बट शी वॉज वेरी सेल्फिश। वो सिर्फ अपने खाने के बारे में सोच रही थी। शी वॉज वेरी ग्रीडी। क्योंकि ग्रीडी क्यों थी, एवरी टाइम शी सॉ द केक तो उसको ऐसा लगता था कि जो मेरा पुराना केक बनाया था
वो छोटा है, इस बार वाला बड़ा है। तो उसने क्या कहा था कि जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा केक मेरे लिए बहुत छोटा है, बट व्हेन आई गिव इट टू अदर्स आई फाइंड इट द केक इज़ टू लार्ज टू गिव इट टू समबडी। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई सेंट पीटर को उस टाइम बहुत गुस्सा आया, बिकॉज होल डे ही वॉज फास्टिंग, उन्होंने पूरा दिन नहीं खाना खाया था। एंड नाउ जब उनका खाने का टाइम आया था, दैट लेडी वॉज नॉट गिविंग हिम फूड। इसकी वजह से उन्होंने कर्ज किया एंड दैट लेडी कन्वर्टेड इनटू अ वुडपेकर। तो इस स्टोरी से हम, इस पोम से हमें क्या मैसेज मिलता है? दैट वी शुड नेवर बी ग्रीडी एंड वी शुड हेल्प पीपल व्हेन दे वांट आवर हेल्प। आई होप यू आर गोइंग टू अप्लाई this a moral in your life, and I hope you like this poem, because this poem is very interesting. Just go through this video again and again to make your concepts more clear. Thank you, students.